Very fresh morning to all students. Students, in this video, I will explain our chapter number 11 of English literature book. The title of this chapter is In Chateau If. In Chateau If is a French pronunciation. The meaning of this word is a palace, or you can say castle. Exact word is castle on an island. Now look at here. The strong building like a castle is on island. That is the meaning of this title word. Now, first of all, see the warm up activity. Alcatraz Island, located in the middle of San Francisco Bay, used to be one of the most dangerous prison in the world. Now here in the picture you can see here, student, in your textbook, this picture is a picture of a very dangerous prison. It is located in the middle of San Francisco Bay. Despite daring attempts made by several prisoners, no one ever managed to escape the place alive. तो ये जो प्रिज़न है यानी बहुत ही डेंजरियस जेल है जहाँ से कोई भी कैदी वहाँ से कभी भी कुछ बाहर निकल नहीं पाया है। ठीक है, अभी कोई भी कैदी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की है तो भी वो सक्सेस उन लोगों को नहीं मिला है। इतनी डेंजरियस वो जेल है। ठीक है, द प्रिजन हैज़ नाउ बीन abandoned, but the place has become a major tourist attraction. ठीक है, but in present time this is a very attractive tourist place for the tourist, along with the nearby lighthouse, और उसकी बाजू में लाइट हाउस भी है. Now look at here, students. Look at the picture of Alcatraz Island and discuss the features that made it such a difficult prison to escape from. So यहाँ पे अभी मैंने बात की कि ये जो पिक्चर दिखा है स्टूडेंट्स वो प्रिजन का है, और ये जो प्रिजन है वो सन फ्रांसिस्को बे में इन द मिडल ऑफ दैट, एंड इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट डेंजरियस प्रिजन इन द वर्ल्ड. ऐसा माना जाता था कि यहाँ से कोई भी कैदी छूट के या भाग के वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाता था. ठीक है, इतनी डेंजरियस प्रिजन थी. तो ये जो पूरी स्टोरी है हमें उसके बारे में और उसके कंसर्निंग जो कैरेक्टर्स यहाँ दिए हैं वो किस तरह से यहाँ से जेल में से भागने की कोशिश करते हैं, हाँ, उन लोगों को सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब जानने के लिए हमें ये लेसन पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है. नाउ लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हियर the introduction of the writer who had written this lesson, Alexander Dumas, born in 1802 and died in 1870, was one of the most famous French writers of the 19th century. तो ये जो लेसन पूरा लिखा है स्टोरी, उसने किसने लिखा है? अलेक्जेंड्रे डूमस ने लिखा है, और he was one of the most famous French writer in the 19th century. Alexandre Dumas is the French type name. He is best known for historical adventure novels like The Three Musketeers and The Count of Monte Cristo. The latter novel is set at the time of Napoleon's return to France after his exile on the Isle of Saint Helena in 1815. तो ये जो फ्रेंच राइटर ने लिखा है बहुत ही अच्छी स्टोरी है. इसमें लेट अस सी व्हाट हैपन इन द स्टोरी. ठीक है, नाउ लुक एट हियर आवर मेन स्टोरी ऑफ द लेसन. दिस स्टोरी इज सेट इन फ्रांस in the 19th century. It is the story of Edmond Dantes. This is the name of person, and here in this story the main character is of Edmond Dantes, a young sailor who is falsely accused of treason and imprisoned in a dungeon
while in prison, the young man almost loses all hope when suddenly. तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टूडेंट्स, उसका जो सेट तैयार किया गया है ये स्टोरी का, वो है फ्रांस का, और 19th सेंचुरी की स्टोरी यहाँ पे दिखाई है। और ये स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नेम है एडमंड डांटे, हु वॉज अ यंग सेलर। वो एक यंग सेलर था और फॉल्सली, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था, बट उसको फॉल्सली ऐसे ही प्रिजन में डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये यंग मैन की स्टोरी यहाँ पे दिखाई है ये लेसन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहाँ पे ये जो एडमंड डांटे है यंग मैन, वो बहुत ही इनोसेंट था, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, फिर भी उसको जेल में डाल दिया था। और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट ऑल होप्स उसकी चली गई थी कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा। ठीक है, व्हेन सडनली, और सडनली कुछ होता है। क्या होता है? लेट अस सी इन द स्टोरी। अबाउट 9 o'clock in the evening, Edmund Dante heard a hollow sound from the wall against which he was lying. तो वो प्रिजन में था, तब अचानक एक दिन क्या होता है, 9 o'clock in the evening टाइम में एडमंड डांटे है वो कुछ उसको होलो साउंड सुनाई देता है वॉल के अगेंस्ट में से। वो जहाँ जो जेल का उसका जो रूम था वो वहाँ पे वॉल के अगेंस्ट में से उसको कुछ ऐसा होलो साउंड सुनाई देता है। डांटेज रेज्ड हिज हेड एंड लिसन, सो ही हैड रेज्ड हिज हेड नियर बाय द वॉल एंड ट्राई टू लिसन that this type of sound from where it came. It was a constant scratching as if made by a huge claws or some iron instrument attacking the stones. तो उसको सुनाई दिया कि किसी ने कोई स्क्रैच कर रहा है या तो कोई आयरन इंस्ट्रूमेंट से स्टोन वॉल के ऊपर अटैक कर रहा है। इट lasted nearly 3 hours, so continuously 3 hours this type of noise came. Some hours afterwards it began again, nearer and more distinct. So after some times it comes again this type of noise, and now he heard that now the noise is nearer and more clear. Distinct का यहाँ पे मतलब होता है clear. There can be no doubt about it, thought Dantes. It is some prisoner who is trying to escape. Oh, if I were only able to help him. फिर उसने सोचा कि मे बी यहाँ पे कोई भी जो प्रिजनर है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ओ इफ़ आई वेर ओनली एबल टू हेल्प हिम, सो उसने सोचा कि मैं भी उसको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। He began by moving his bed and looked around for anything with which he could pierce the wall. He saw nothing. He had no knife or sharp instrument. तो उसने भी सोचा कि मैं भी ये प्रिजनर को कुछ हेल्प कर सकूं। तो उसने वहाँ पे देखा आजू बाजू में, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वॉल को पियर्स करने के लिए। ही सो नथिंग, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया वहाँ पे। ही हैड नो नाइफ और शार्प इंस्ट्रूमेंट, उसके पास कोई नाइफ या कोई भी आयरन का शार्प इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। देयर वॉज ओनली ए वाटर जग, वहाँ पे एक सिर्फ वाटर जग ही था। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पे जो वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि वर्ड आया अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है ब्लेम्ड और फाउंड गिल्टी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ब्लेम करना या गिल्टी महसूस करना, कुछ हमने रॉन्ग वर्क किया है तो उसके बारे में। फिर है ट्रीजन, बीइंग डिसलॉयल टू योर कंट्री। ट्रीजन का मतलब होता है, ठीक है, आप अपने कंट्री के प्रति लॉयल यानी वफादार नहीं होते हैं। बाई हेल्पिंग इट्स एनिमीज़, अगर कोई आप एनिमीज़ को हेल्प करते हो तो इट शोज़ दैट यू आर नॉट फेथफुल टू योर ओन कंट्री। फिर है डंजन, मीन्स डार्क अंडरग्राउंड प्रिजन। डंजन का मतलब होता है डार्क अंडरग्राउंड प्रिजन यानी जेल।
और नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्ट, यानी होता है उसका मतलब क्लियर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन। तो यहाँ पे ये डांटे है नाम का जो सेलर है, यंग सेलर, आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिया है उसका। सी दैट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ यंग डांटे who was a very brave sailor, and he was innocent falsely. He came in the prison, उसका कोई भी फॉल्ट नहीं था, बट फिर भी उसको प्रिजन में डाल दिया था। ठीक है, और उसने सब अपनी आशाएं छोड़ दी थी कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। अचानक से वो आवाज़ सुनता है कुछ वॉल के अगेंस्ट में से, फिर वो उसको लगता है कि कोई प्रिजनर है, वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो मैं भी उसको कुछ हेल्प करूँ। तो उसको वॉल को स्क्रैच करना था, बट उसके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। उसके पास सिर्फ क्या पड़ा था, वाटर जग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो इतना तक हमने फर्स्ट पेज में लेसन किया स्टोरी में से। तो अब हम सेकेंड पेज में आगे बढ़ते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द टेबल सो ही ब्रॉक द वाटर जग, उसके पास एक वाटर जग ही पड़ा था टेबल के ऊपर। सो ही ब्रॉक द वाटर जग एंड विथ वन ऑफ द शार्प फ्रेगमेंट्स अटैक द वॉल। तो उसने जो वाटर जग था उसको तोड़ दिया और उसमें से एक शार्प फ्रेगमेंट्स यानी एक टुकड़ा लेके उसने वॉल के ऊपर अटैक किया। इन 3 days Dantes had managed to remove the cement and expose the stonework. Almost 3 days he had struggled a lot, and within these 3 days, after toiling too much, at least he removed the cement एंड एक्सपोज द स्टोन वर्क। तो उसने वहाँ से वो जो सीमेंट का प्लास्टर वगैरह था वो उसने तोड़ दिया, एंड एक्सपोज द स्टोन वर्क, और वहाँ पे जो वॉल के ऊपर स्टोन का वर्क था वो भी उसने तोड़ दिया। द वॉल वॉज बिल्ट ऑफ रफ स्टोन्स, पूरी की पूरी वॉल थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ स्टोन से बनाई हुई थी। डांटेज हैड टू रिमूव वन ऑफ दिस फ्रॉम इट्स प्लेस। तो वहाँ पे उसकी प्लेस थी, आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में, ये जो पूरा वॉल है बहुत ही रफ स्टोन से एकदम मजबूत दीवार बनाई थी, और बिकॉज ऑफ टू मच टॉयलिंग ऑफ 3 days he had broke at least some of the portions of the walls. Dantes had to remove one of this from its place. He tried to do this with his nails, but they were too weak. The fragments of the jug broke, and after an hour of useless toil he paused. After doing too much work with that fragments of the jug, at least finally that the fragment of the jug also broken, and after an hour of useless toil he paused. After doing 1 hour useless toil he paused. He stopped his work in spite of the pain and the weakness. He was not ready to stop. Even because of this much struggle he had done, he was feeling pain and weakness in his body. Still he was not ready to stop this work. Now look at that, what happened. Then an idea occurred to him. फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है. The jailer always brought his soup in an saucepan. The handle of the saucepan was of iron too. फिर उसके माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है कि जो जेलर आता है हर रोज़ वो सूप लेके आता है एक आयरन सॉसपैन में, तो उसने सोचा कि उसका जो हैंडल है आयरन का वो मैं ले लेता हूँ. ही कुड यूज़ द हैंडल ऑफ द सॉसपैन एज अ लीवर. At the end of an hour, the stone was removed from the wall. So he had used that saucepan handle because that was a very sharp, and with that help he tried to remove the wall from the stones from the wall. Leaving a cavity a foot and half in diameter, he carefully collected the plaster, carried it into the corner of his cell and covered it with earth. And finally he had carefully collected the plaster of that wall and carried into the one of the corner of his cell and covered that plasters with the earth so that the jailer will not see it. All day he toiled,
That evening he met with an obstacle. It was a beam. And all day he had struggled a lot to break that wall. And that evening he met with an obstacle. Here, obstacle means something that blocks or stands in your way, means difficulty. It was a beam. Here, beam means a long and heavy piece of wood or steel used in a building construction. तो यहाँ पे एक बीम के साथ उसका it was a beam. This beam went across the hole Dante's had made and blocked it. So he would have to dig above or under it. He had not thought of this. So on that evening he met with one obstacle and it was one big beam. So here आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है. You can see here that boy is with the one iron sticks trying to take that beam, one of the piece, big piece, heavy piece. You can see here the beam means here a long and heavy piece of wood or steel used in especially in building construction. So that type of beam was there. This beam went across the hole Dante's had made and blocked it. ठीक है, तो वहाँ पे उसने जो वॉल में स्ट्रगल किया था वहाँ पे एक बड़ा बीम भी था. होल across the hole Dante had made and blocked it. फिर उसने वो उसके साथ उसको ब्लॉक कर दिया. So he would have to dig above or under it. He had not thought of this. Oh my God, he murmured. Have pity on me and do not let me die in despair. तो उसको बहुत ही स्ट्रगल हुई ये सब काम करने में. और ही मरमर्ड, वो अंदर ही अंदर ऐसा बोलता रहा अपने मन में, ओ माई गॉड हैव पिटी ऑन मी. ओ भगवान मेरे पे दया करो. एंड डो नॉट लेट मी डाई इन डिस्पेयर. हाँ, अब ये यहाँ पे मैं निराशा में ही मैं मर न जाऊँ, ऐसा वो मन में बोलता रहा. Who talks of God and despair at the same time? Said a voice that seems to come from the wall. Dante's hair stood on end. हाँ, जैसे ही ऐसे मन में बोलता था ऐसे वाक्य, तो वहाँ से अगेंस्ट वॉल में से किसी की आवाज़ आई. Who talks of God and despair at the same time? कौन बोल रहा है भगवान और निराशा के बारे में at the same time? Said a voice that seems to come from the wall. Dante's hair stood on end. Now suddenly ऐसा किसी का आवाज़ आया कि कौन है जो भगवान और निराशा के बारे में at the same time बोल रहा है. हाँ, तो ऐसा वॉइस सुन के जो डांटे था वो हेयर स्टूड ऑन एंड मीन्स वो उसको बहुत सरप्राइज लगा कि ये कौन बोल रहा है, कि किसका आवाज़ है. ही वॉज टू मच सरप्राइज्ड. Okay, so this is here the end of the second page. Let us see the word meaning of this page. Toil, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा है toil. तो toil का मतलब है to work for a long time doing something difficult and tiring. Toil means लॉन्ग टाइम तक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क करना, उसको बोलते हैं toil. An idea occurred to him मीन्स सडनली ही थॉट ऑफ एन आइडिया, तो उसके मन में सडनली एक आइडिया आता है. फिर लीवर अ स्ट्रेट मेटल रोड. एक स्ट्रेट यहाँ पे दिखा है आपको पिक्चर में ही, ये पर्सन के हाथ में लीवर यानी एक स्ट्रेट मेटल का रोड है. रोड यानी स्टिक्स विच कैन बी यूज टू लिफ्ट और मूव अनदर लार्जर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से ये बीम है, ये बीम का पिक्चर दिखाया है, उसको लिफ्ट करने में ये मेटल का रोड उसने लिया है. फिर है नेक्स्ट वर्ड है कैविटी, एन ओपनिंग और होलो स्पेस. फिर नेक्स्ट वर्ड है डायमीटर मीन्स विड्थ. फिर नेक्स्ट वर्ड है प्लास्टर, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट. जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं वहाँ पे सैंड यानी रेती और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है उसको प्लास्टर कहते हैं. यूज टू कवर द ब्रिक्स इन अ वॉल ऑफ बिल्डिंग. तो जहाँ पे ब्रिक्स यानी ईंट होती है ना वॉल में हम अरेंज करते हैं बिल्डिंग में,
वो कवर करने के लिए ऐसा प्लास्टर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिकल्स, यानी मैंने अभी समझाया कि कोई डिफ़िकल्टीज़। फिर बीम, अ लॉन्ग एंड हैवी पीस ऑफ वुड और स्टील। देन पीटी यानी सिंपैथी यानी दया, उसको भी हम कह सकते हैं, किसी के प्रति दया का भाव होना। और डिस्पेयर, अ कंडीशन विदाउट एनी होप, मीन्स जहाँ पे होप यानी आशा की कोई सिचुएशन नहीं होती है, उसको हम निराशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डांटे बहुत ही टॉयल करता है, बहुत ही स्ट्रगल करता है वॉल को ब्रेक करने की। सडनली उसको आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, और बोलता है हु टॉक्स ऑफ गॉड एंड डिस्पेयर एट द सेम टाइम, कौन भगवान और निराशा के बारे में सेम टाइम बोल रहा है, ऐसा एक सडनली स्ट्रेंज वॉइस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज सेकंड है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये 2 पेजेस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंसर्निंग, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है ये स्टोरी का, वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो मैंने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ दैट, लुक एट हियर, व्हाई डिड डांटेस फील दैट सम प्रिजनर वाज प्लॉटिंग टू एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे डांटे को ऐसा क्यों लगा कि कोई प्रिजनर है वो यहाँ पे प्लान कर रहा है एस्केप, यानी यहाँ से भागने का प्लान कर रहा है, ऐसा क्यों उसको लगा। लुक एट हियर द आंसर। ठीक है, डांटेस फेल्ट दैट सम प्रिजनर वॉज प्लॉटिंग टू एस्केप बिकॉज ही हर्ड अ स्क्रैचिंग फ्रॉम द वॉल। तो उसको वॉल में से स्क्रैचिंग की आवाज़ आई, कोई स्क्रैच कर रहा है वॉल को, अगेंस्ट विच ही वॉज लेइंग, जहाँ पे वो सोया था उसके सामने की वॉल थी, वहाँ पे वॉल के अगेंस्ट यानी वॉल की दूसरी तरफ से स्क्रैचिंग का आवाज़ आया। इट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स, और वो आवाज़ ऑलमोस्ट कितने आवर्स तक आई, 3 आवर्स तक। एंड इट साउंडेड एज इफ समवन वॉज ट्राइंग टू मूव और ब्रेक द स्टोन्स। तो ये आवाज़ के ऊपर से उसको लगा कि कोई है जो ट्राई कर रहा है यहाँ से भागने की, या तो ये जो स्टोन्स है वॉल के उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको लगा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, Dantes felt that some prisoner was plotting to escape because he heard a scratching from the wall against which he was lying. It went on for almost 3 hours and it sounded as if someone was trying to move or break the stones. Now let us see the second questions what is given. Look at here students. Describe Dante's initial efforts to help the other prisoner. तो यहाँ पे डांटे ने कितने मीन्स जो बिगेनिंग में वो प्रिजनर, अदर प्रिजनर, वो अननोन था, उसको पता भी नहीं था वो कौन था। ठीक है, बट उसको लगा कि ये प्रिजनर को मुझे हेल्प करनी है, इसलिए उसके इनिशियल एफर्ट्स क्या थे उसके बारे में हमें ये क्वेश्चंस में लिखना है। नाउ लुक एट द आंसर नंबर 2. व्हाट इज आंसर? लुक एट हियर. एट फर्स्ट डांटेस मूव्ड हिज बेड and because he had no knife or other sharp instrument to work with. तो जैसे ही उसने ये 3 आवर्स ये साउंड सुना तो उसको लगा कि मुझे भी ये प्रिजनर को हेल्प करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसके जो रूम था उसका जो वहाँ पे दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उसके पास नाइफ भी नहीं थी और कोई शार्प आयरन इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। He broke the water jug and attacked the wall with one of the sharp fragments. तो वहाँ पे एक वाटर जग पड़ा था, तो उसने वो वाटर जग को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और उसमें से वन ऑफ द शार्प फ्रेगमेंट, उसका एक टुकड़ा था वो बहुत ही शार्प था, वो टुकड़े को लेके उसने वो टॉयल किया, और उसी तरह से वो इनिशियल लेवल में उसने वो वाटर जग का यूज़ किया। ठीक है, वो वॉल ब्रेकआउट करने के लिए। So I repeat once again student answer for you. At first Dantes moved his bed and because he had no knife or other sharp instrument to work with,
He broke the water jug and attacked the wall with one of the sharp fragments. Okay, now see the next question. Number 3. What kind of success did Dantes achieve after several days of toil? सेवरल डेज तक उसने बहुत ही वर्क किया, टॉयल किया, तो उसको क्या सक्सेस मिला? ठीक है, नाउ लुक एट हियर. आंसर नंबर 3. आफ्टर 3 days of toil, Dantes succeeded in removing the cement and exposing the stonework. तो 3 दिन तक कंटिन्यूसली उसने टॉयल किया, तो उसको वो सक्सेस मिला कि एटलीस्ट उसने क्या किया, जो वॉल के ऊपर जो सीमेंट था स्टोन वर्क के ऊपर, उसको उसने रिमूव कर दिया. पूरा का पूरा जो सीमेंट का प्लास्टर था वो उसने रिमूव किया. द वॉल वॉज बिल्ट ऑफ रफ स्टोन्स. पूरी की पूरी जो वॉल थी वो रफ स्टोन से बिल्ट अप हुई थी. एंड ही नीडेड टू रिमूव अ स्टोन्स. और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रफ स्टोन्स थे. इवन आपको पिक्चर्स में भी दिखाया है. तो उसको वो स्टोन्स रिमूव करने थे. ही ट्राइड टू डू दैट विथ हिज नेल्स. पहले तो उसने अपने नेल से ट्राई किया, बट कुड नॉट. बट नेल से वो स्टोन्स बहुत ही हार्ड थे, इसलिए वो नेल से नहीं कर पाया. द पीस ऑफ जग ऑल्सो ब्रोक. आफ्टरवर्ड द फ्रेगमेंट्स ऑफ sharp fragment of jug also broke. So he used the iron handle of his saucepan as a lever and managed to remove the stone. फिर उसने क्या किया, जो जेलर वो सॉसपन लाता था उसमें सूप भर के उसका जो हैंडल था सॉसपन का, वो उसने एज अ लीवर मीन्स एज अ स्ट्रेट मेटल रोड की तरह उसने यूज़ किया. ठीक है. एंड मैनेज टू रिमूव द स्टोन्स. और उसकी हेल्प लेके, सॉसपन का हैंडल की हेल्प लेके उसने वो स्टोन को रिमूव करने की ट्राई की. ठीक है. तो आई रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट्स फॉर यू. Dantes succeeded in removing the cement and exposing the stonework. The wall was built of rough stones and he needed to remove a stone. He tried to do that with his nails but could not. The piece of jug also broke, so he used the iron handle of his saucepan as a lever and managed to remove the stone. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ. ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से अपनी फेयरबुक में लिख लेना है. ठीक है. एंड वॉट एवर आई हैव डिस्कस इन दिस पार्ट, that lesson you have to read it properly, and even word meaning also you have to write in your fair notebook. So the remaining part of the story I will discuss in the second part of this lesson. Okay, ये पार्ट के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ